Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Today we will see how we can represent and analyze a discrete time system in time domain in MATLAB. A discrete time system processes an input signal in time domain to generate an output signal with more desirable properties by applying an algorithm composed of simple operation on the input signal and its delayed version. The aim of this exercise is to illustrate the simulation of some simple discrete time systems on computer using MATLAB and investigate their time domain properties like linearity, time variant, stability, convolutional property, and etc. As we know, for a linear system, if x of n is equal to alpha x1 of n plus beta x2 of n, will gives us y of n is equal to alpha y1 of n plus beta y2 of n. If a system holds this property, the system is known as a linear, and if this property is not satisfied, the system is considered as non-linear. And for time invariant system, if x of n is equal to x of n minus n naught, which is a shifted version of x1, gives you y of n is equal to y1 of n minus n naught, then the system is said to be time invariant. And if it doesn't satisfy this property, the system is time invariant. LTI systems means and linear time invariant systems hold both these properties of linearity and time invariance. Similarly, for a causal system, if causal system depends on the future values, and for a non-causal system, it depends on present and past values of the system. Bounded input, bounded output. For a system which is not stable, you can define a boundaries in which the system is stable, and if it gives you the response in the same boundaries, then it is said to be a bounded input, bounded output system. The response, impulse response of a system or a unit sample response of a system is that if you give the impulse at the input of the system, the response generated due to that pulse is known as impulse response of the system. And if you know the impulse response of a system, you can easily predict the output of system for any input by using convolution. If we convolve the impulse response with the input, we will get the output of that system whose impulse response was given. Cascaded form, we can break a system into two smaller systems, such that we give input to h1 of n, and the output of h of 1 of n becomes the input of h2 of n. Or if we give input at h2 of n, the output of h2 of n will become the output of h1 of n. The output of both these systems should be equal to the combined effect or combined response of the system or the response of the full system. A discrete time system is causal if and only if its impulse response sequence satisfies the condition h of k of 0 for k less than or equal to 0. We can represent a system in its characteristics equation or by using linear constant coefficient difference equation of the form this d of k and p of k. The d of k coefficients are with y, and p of k are the coefficients of x. So we can represent a system in MATLAB. Also we can represent it by p of k divided by d of k. This polynomial becomes the nominator, and this d of k becomes a denominator in a
in a difference equation. So this is how we can represent a system in MATLAB. आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को टाइम डोमेन में उनका एनालिसिस कर सकते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे बात की थी लैब 2 में। आज लैब 3 के अंदर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, आपके पास स्टेबल है, अनस्टेबल है, कन्वोल्यूशन कैसे होती है। तो ये सारी चीजें आज की लैब में हम देखेंगे। जो कमांड्स इसके लिए यूज होंगी वो ये हैं, फॉर, इफ, इनपुट एंड ब्रेक, डिस्प्ले। ऑपरेटर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो ये हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो यूज करने पड़ेंगे ऑपरेशन, वो वंस है, पाई है, जीरोस हैं, एब्सोल्यूट का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, कन्वोल्यूशन का फंक्शन हम यूज करेंगे, उसकी कमांड है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। किसी भी सिस्टम को आप मैटलैब में उसके पोलिनोम जो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके पास नॉमिनेटर में आ जाते हैं, ठीक है। जो एक्स के साथ होंगे ना, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4 या एक्स ऑफ n, n-1, n-2, वो आपके पास नॉमिनेटर में आ जाते हैं। और जो y के साथ होंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। यानी हम x ओवर y की फॉर्म में सिस्टम को मैटलैब के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिल्टर की कमांड एक ऐसी कमांड है जो एक सिस्टम के अंदर से इस नम डिनम जो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस सिस्टम के अंदर से इस x को गुजारेगा और जो आउटपुट पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो y के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिल्टर का काम ये है कि ये x में से इस x को इस सिस्टम के अंदर से गुजारने के बाद जो आउटपुट पे जो सिग्नल जनरेट होता है वो सिग्नल आपको y के अंदर मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर फिल्टर के अंदर इनिशियल कंडीशंस की ऑप्शन भी है। अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशंस कोई हैं तो मैं उनको भी डिफाइन कर सकता हूं कि अगर सिस्टम मेरे पास ऑलरेडी जीरो स्टेट पे नहीं है, किसी और स्टेट पे है, तो मैं उसके लिए इनिशियल कंडीशंस डिफाइन करूंगा कि सिस्टम में जब ये सिग्नल आया तो वो सिस्टम किस पोजीशन में था, तो वो इनिशियल कंडीशंस में हम डिफाइन कर सकते हैं। जो पहला सिस्टम हम देख रहे हैं वो मूविंग एवरेज सिस्टम है। मूविंग एवरेज सिस्टम y of n is equal to 1/3 x of n plus x of n minus 1 plus x of n minus 2। ये मेरे पास एक मूविंग एवरेज सिस्टम है। अगर मैं इसको लूप की फॉर्म में या समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो 1/m 0 m minus 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो x of n के साथ सारों के साथ कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो मैटलैब में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो नम में मेरे पास 3 1 आ जाएंगे, 1, 1, 1, ठीक है, कुछ इस तरह से। यानी नम के अंदर नम इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3 है तो नम डिवाइडेड बाय 3। अब डी नम में मेरे पास सिर्फ 1 है, ठीक है। y के साथ मेरे पास सिर्फ 1 है तो डी नम में मेरे पास 1 है। तो डी एन में मैं इज इक्वल टू 1 रख लेता हूं। अब मुझे कोई भी सिग्नल x जनरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी 0.1 2 पाई f इंटू n। मुझे पॉइंट्स जनरेट करने हैं जो कि मैं 0 से 10 तक जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। वैल्यूज असाइन करनी है तो मुझे ये मैंने एक सिग्नल जनरेट कर लिया। अब इस सिग्नल को y इज इक्वल टू फिल्टर की कमांड लगाते हैं, ठीक है। इस मूविंग एवरेज फिल्टर से मैं गुजारता हूं। तो पहले मेरे पास नम आ गया, फिर मेरे पास डिनोमिनेटर आ गया, फिर मेरे पास ये x आ गया। तो मेरे पास एक y सिग्नल जनरेट हो रहा है जो इसकी आउटपुट है। तो ये इस तरह से हम
सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, सिस्टम के अंदर से सिग्नल को गुजारेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर होगी होंगी बहुत सारी चीजें। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अब आते हैं जी सिस्टम के ऊपर। तो मैटलैब में हम लोग अब ये फिल्टर इंप्लीमेंट करेंगे मूविंग एवरेज। तो इसके लिए मैंने ये देखने के लिए कि मूविंग एवरेज फिल्टर का रिस्पांस कैसा है, हाई पास है या लो पास है, तो मैं एक ऐसा सिग्नल बनाता हूँ, एक स्वीप बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी का, जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक लो फ्रीक्वेंसी एक हाई फ्रीक्वेंसी। तो मैंने सबसे पहले एक इंडेक्स जनरेट कर लिया 0 से 100 तक, ठीक है, टाइम इंडेक्स जनरेट कर लिया। एक सिग्नल जनरेट किया है जो लो फ्रीक्वेंसी का है 0.05 का, और दूसरा सिग्नल मैंने जनरेट किया है 0.47 फ्रीक्वेंसी का। अब इन दोनों को मैंने कंकैटिनेट कर लिया या कंबाइन कर लिया यूजिंग प्लस ऑपरेशन। तो S1 प्लस S2 मेरे पास X में आ गया। अब X एक ऐसा सिग्नल है जिसमें ये दोनों फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, ठीक है। मैं यूजर से अब ले रहा हूं इनपुट के फिल्टर की लेंथ कितनी हो, उसके कोफिशिएंट्स कितने हो। जिस तरह अभी जो हमने एग्जांपल की थी उसमें कोफिशिएंट 3 थे, ठीक है। आप 4 भी रख सकते हो, आप 5 भी रख सकते हो, आपने जितने भी वंस जनरेट करने हैं आप वो फिल्टर की लेंथ यूजर से ले रहे हो। इसको फिक्स भी कर सकते हैं और यूजर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यूजर ने जितना ऑर्डर उसका इनपुट किया है उतने मैंने वंस जनरेट कर लिए, ठीक है। वंस 1/m, जिस तरह मैं 1 कर रहा था, यूजर ने 4 दिए तो ये 4 1 होंगे, 5 दिए तो 5 वंस का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर अब जो वन जनरेट हुए हैं, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 है, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि y ऑफ n के साथ 1 है। x मेरे पास इनपुट सिग्नल आ गया, m जो हम सिस्टम को डिवाइडेड बाय m कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय m कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय m करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से ये मूविंग एवरेज फिल्टर से मेरे पास से x को गुजारने के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो y में आ रहा है, और y का वो रिस्पॉन्स मैंने नीचे प्लॉट कर दिया। पहले मैंने सिग्नल 1 प्लॉट किया, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फिर मैंने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्लॉट किया, ठीक है। फिर सिग्नल 2 प्लॉट करने के बाद मैंने कंबाइंड जो इफेक्ट था x का वो प्लॉट किया, और फिर मैंने रिस्पॉन्स को प्लॉट किया, प्लॉट n, y। तो अब मैं इसका रिस्पॉन्स देखता हूं कि मेरे पास इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक है। वंस नम वंस m हो गया, वाई फिल्टर 1, ये सारी चीजें वही कोड की आ गई हैं। इसको रन करते हैं। अब डिजायर्ड फिल्टर लेंथ, डिजायर्ड फिल्टर लेंथ जितनी ज्यादा फिल्टर की लेंथ होगी उतना ही उसका रिस्पॉन्स स्मूथ होगा। लेट सपोज मैंने 10 एंटर किया, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा मेरे पास प्लॉट्स आ जाएंगे। तो ये मेरे पास प्लॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। सिग्नल 1 लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, सिग्नल 2 हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब यहाँ पे ये दोनों लो और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों सिग्नल्स ऐड हुए हुए हैं। इस इनपुट सिग्नल को जब मैंने मूविंग एवरेज फिल्टर से गुजारा तो मेरे पास यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इसमें से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि मूविंग एवरेज फिल्टर एक लो पास फिल्टर है, उसने लो फ्रीक्वेंसीज को गुजरने दिया, हाई फ्रीक्वेंसी को उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब अगर इसी लो फ्रीक्वेंसी मूविंग एवरेज फिल्टर को मैंने लो पास की जगह हाई पास बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा आप सोचें। ये मुझे आप क्यूरी के सेशन में बताएंगे कि अगर मैंने मूविंग एवरेज फिल्टर का रिस्पॉन्स लो पास से हाई पास लेना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। हाई पास कैसे इसका होगा, मीन्स के मुझे अगर कुछ
चलो ये आप लोगों की एक्सरसाइज है कि कैसे होगा। हाँ जी, अब इस फॉर्म में देखें तो मेरे पास ये हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है मगर काफ़ी वीक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, मगर लो पास की जगह ये हाई पास बन रहा है। मुझे इस तरह का फिल्टर ये कैसे बना है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं क्यूरीज के सेशन में आपसे ये पूछूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं मेरे पास ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आउटपुट पे आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा। ये कैसे आया है, क्यों आया है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं। इसके ये 4 क्वेश्चंस है इस प्रोग्राम से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने करने हैं। आपको पता है कि मैनुअल आप लोगों ने हैंड रिटन करने हैं, कैसे करने हैं। हर एक पेज के ऊपर आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, वरना मैं उसको नहीं कंसिडर करूंगा। अ सिंपल नॉन लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब एक नॉन लीनियर सिस्टम को देखते हैं। नॉन लीनियर सिस्टम मेरे पास है एक्स ऑफ एन का स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स ऑफ एन प्लस वन। अच्छा, एक्स ऑफ एन मैंने इनपुट सिग्नल ले लिया, उससे मैंने एक्स ऑफ एन का स्क्वायर जनरेट कर लिया। अब ये एक्स ऑफ एन माइनस वन एक शिफ्टेड वर्जन है और एक एक्स ऑफ एन प्लस वन एडवांस में आ रहा है। ठीक है, एक प्रीवियस शिफ्ट हो रहा है, एक फ्यूचर शिफ्ट हो रहा है। तो ये शिफ्टिंग हम लोगों ने यूनिट जब हम सैंपल यूनिट डेल्टा इम्पल्स बना रहे थे पिछली लैब में, तो उसमें हमने देखा था कि हमने ये n माइनस वन यानी एक शिफ्ट देना है तो शुरू में एक जीरो ऐड कर देना है, एक पहले लेके आना है तो आखिर में एक जीरो ऐड कर देना है। तो मैं x ऑफ n को जो है नीचे एक्सरसाइज में आते हैं, तो x मैंने एक सिग्नल जनरेट कर लिया 2 पाई 0.05 n का, n मैंने 0 से 200 तक ले लिया। अब मुझे x को अगर मैंने लेना है तो वो मैं इसको शुरू में एक जीरो और आखिर में एक जीरो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में x ऑफ n जनरेट कर रहा हूँ। अब x ऑफ n प्लस वन जनरेट करना है, मीन्स x की जगह जीरो, x को एक प्रीवियस मूव करना है, और x ऑफ n माइनस वन x की जगह जीरो, x को एक आगे मूव करना है। तो इस तरह से मैंने ये x1 x2 x3 बनाए हैं। ठीक है, x2 इंटू x2 x स्क्वायर बन जाएगा माइनस x1 इंटू x3। तो ये मेरे पास सिस्टम आ रहा है, नॉन लीनियर सिस्टम है। इसको मैंने उसका प्लॉट कर लिया है, उसके बाद उसको मैंने प्लॉट किया, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक नॉन लीनियर सिस्टम है। इनपुट सिग्नल मेरे पास x ऑफ n ये आ रहा था। इस नॉन लीनियर सिस्टम से जब मैंने रिस्पॉन्स को गुजारा तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पे 0.8 और 0.8 की कर्व्स आ रही हैं, बाकी इतनी नहीं आ रही हैं। ठीक है, जो 200 पॉइंट्स हैं जो, और इसमें जो पहले 2 पॉइंट्स हैं वो मैंने इसलिए मिस किए हैं कि वो मैंने जो जीरोज ऐड किए थे उनको मैंने निकाला है। तो ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है जिसको हमने प्लॉट किया। अब इससे आगे चलते हैं। इसके बाद इसके नीचे कुछ 2 क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा। अच्छा, वो एक नॉन लीनियर सिस्टम था। अब ये मेरे पास नीचे एक सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें x के कोफिशिएंट्स भी हैं, जिसमें y के कोफिशिएंट्स भी हैं, मींस के नम में भी है और डी नम भी है। ठीक है, नम में मेरे पास 2.2403, 2.4908 और 2.2403 आ जाएगा, और इसी तरह डी नम में मेरे पास 1, 0.4 और 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो नम डी नम में आ गया। अब लीनियरिटी हम कैसे प्रूव करते हैं? ax1 ऑफ n प्लस bx2 ऑफ n, अगर ये इक्वल आ जाए y x1 ऑफ n और y ay1 ऑफ n प्लस by2 ऑफ n के, तो हम कहते हैं ये सिस्टम लीनियर है। मैटलैब में हम इसको इस तरह करेंगे कि हम पहले x1 ऑफ n का रिस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, फिर हम x2 ऑफ n का रिस्पॉन्स देखेंगे। x1 ऑफ 1 का रिस्पॉन्स y1 आ जाएगा,
x2 का रिस्पॉन्स y2 आ जाएगा। फिर हम ax1 प्लस bx2 का रिस्पॉन्स देखेंगे और जो हमने सेपरेटली y1 और y2 निकाले हैं हम उसमें ay1 प्लस by2 ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो इसका जॉइंट रिस्पॉन्स और जो हमने सेपरेट रिस्पॉन्स जनरेट किए थे हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 है इसका मतलब है ये दोनों रिस्पॉन्स इक्वल है तो सिस्टम लीनियर है। अगर वो डिफरेंस नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम नॉन लीनियर है। ठीक है, अब इसके लिए एक्सरसाइज देखते हैं कैसे होगा। मैंने 0 to 40 एक इंडेक्स जनरेट कर लिया, a को मैंने 2 रख लिया, b को मैंने -3 रख दिया, x1 जनरेट कर लिया cos 2 पाई 0.1n, x2 जनरेट कर दिया cos 2 पाई 0.4n। ठीक है, अब x मैंने जनरेट कर लिया ax1 प्लस bx2। ठीक है, ये मेरे पास x1 आ गया, ये x2 आ गया और ये कंबाइंड ax1 प्लस bx2 आ गया। ये मेरे पास सिस्टम आ गया। ठीक है, नम और डी नम में इनिशियल कंडीशन 0 है, रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो आपकी मर्जी है, आईसी यहाँ लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इनिशियल कंडीशंस को हमने 0 सेट किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने पहले x1 के साथ सिस्टम का रिस्पॉन्स में ये निकाला है, कंप्यूट किया, फिर x2 के साथ कंप्यूट किया और फिर x के साथ कंप्यूट किया, तो मेरे पास y1 y2 और y रिस्पॉन्स आ गया। अब ये y1 और y2 के साथ मैंने ay1 प्लस by2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक yt जनरेट कर लिया है। ठीक है, जो मैंने y1 और y2 से जनरेट किया, इनका कंबाइंड रिस्पॉन्स को नहीं देखा। अब डिफरेंस निकाल लिया जो मेरे पास कंबाइंड था वो y का और इस y ऑफ t का। अगर ये डिफरेंस मेरे पास 0 है तो ये सिस्टम लीनियर है, अगर ये डिफरेंस नॉन जीरो आ रहा है तो ये सिस्टम नॉन लीनियर है। मैटलैब में इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था, हाँ जी, ये ठीक हो गया। चलें अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, तो मेरे पास ये ax1 प्लस bx2 का रिस्पॉन्स था और ये जो मैंने वेटेड आउटपुट या बाद में जो y1 और y2 के साथ b को और a को मल्टीप्लाई करके जो निकाला वो ये आ रहा। तो देखने से भी लग रहा है कि ये रिस्पॉन्स इक्वल है, इनका डिफरेंस सिग्नल मेरे पास 0 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि मैंने ये एक्सेस की कमांड यूज़ की है। अगर ये एक्सेस की कमांड में यूज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, अब ये आपको जो डिफरेंस सिग्नल है ये लगेगा कि नॉन जीरो है, मगर ये है जीरो है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यूज देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -15, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही है। मींस के 0.15 जीरो और फिर 5, तो ये इतनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको जीरो ही कंसिडर करते हैं। 10 रेज़ टू पावर -6 से आगे हम लोग जीरो ही लेते हैं वैल्यूज को कि वो जीरो ही है। तो इसीलिए मैंने इसको एक्सिस को फिक्स किया -1 और +1 के बीच में। अब इसको रन करके देखेंगे तो आपको ये -1 और 1 के हिसाब से ये वैल्यूज इतनी छोटी हैं कि वो जीरो ही नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम लीनियर है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सिग्नल मेरे पास जीरो आ रहा है। अब इसी सिग्नल को मैं नॉन लीनियर बना देता हूँ। 0.75 को अगर मैं 1.2 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, अभी भी सिस्टम लीनियर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको 0.75 ही रहने देते हैं, बल्कि इसको माइनस करके देखते हैं। अभी भी ये सिस्टम लीनियर ही है, माइनस से रिफ्लेक्शन हो रही है इसकी। और अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूं, अभी भी लीनियर ही आ रहा है। अगेन लीनियर है। अब अगर आप ये देखें तो सिस्टम नॉन लीनियर है। ठीक है, -1 से ऊपर वैल्यूज आ रही हैं। अब ये सिस्टम नॉन लीनियर रिस्पॉन्स आ रहा है। जिस तरह आपके पास पहले नॉन लीनियर का आ रहा था, ये 10 रेज़ टू पावर 20 मींस
कि यहाँ पे ये 400 या 500 की वैल्यूज आ रही हैं। अब ये डिफरेंस सिग्नल देख रहे हैं, ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब इस नॉन ज़ीरो डिफरेंस सिग्नल की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो सिस्टम जो ऊपर अभी मैंने जिसकी इक्वेशन लिखी है, ये तो मैंने हिट एंड ट्राई मेथड से, हिट और मिस मेथड से देखा है कि जहां मेरा सिस्टम नॉन लीनियर आ गया, मैंने आपको बता दिया। मगर बुक में आपके पास नॉन लीनियर और लीनियर की एग्जांपल्स मौजूद हैं, टीएसपी की बुक में। तो अब अगला देखते हैं। अगली एक्सरसाइज भी तकरीबन उसी तरह, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। हमने एक x1 जनरेट किया, उसको शिफ्ट करके x को शिफ्ट किया, ठीक है, शिफ्टेड वर्जन का रिस्पॉन्स निकाला, और जो शिफ्टेड नहीं था उसका रिस्पॉन्स निकाल के उसको शिफ्ट किया, ठीक है। उसको शिफ्ट करने के बाद उसका डिफरेंस सिग्नल निकाला, तो हमारे पास पता चल गया कि वो लीनियर टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। टाइम इनवेरिएंट मींस कि उसका रिस्पॉन्स टाइम शिफ्टिंग के साथ चेंज होता है या नहीं होता। तो इसको देखते हैं, ठीक है। डी मैंने डिलेड वर्जन 0 to 40 मैंने इंडेक्स जनरेट कर दिया, डी मैंने ले लिया एक डिलेड वर्जन है, ठीक है। उसी तरह ए और बी की वैल्यूज है, मैंने एक्स जनरेट कर लिया, ए कॉस 2 पाई प्लस बी कॉस 2 पाई 0.4 n, ये मैंने इनपुट सिग्नल जनरेट कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास एक्स डी इस इनपुट सिग्नल का डिलेड वर्जन है, मींस कि शुरू में मैंने 10 जीरोज ऐड कर दी हैं, ठीक है। मैंने नम डी नम ले लिया, वही जो मेरे पास पहले सिस्टम है, मेरे पास वही सिस्टम है, इनिशियल कंडीशंस ले ली हैं। मैंने इस सिस्टम के अंदर से पहले x को गुजारा है, ठीक है, उसके बाद मैंने इससे एक्स डी डिलेड वर्जन को गुजारा है। तो अब मेरे पास दो रिस्पॉन्स है, एक y और एक डिलेड y। अब y में से मैं डिलेड y को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और डिलेड y में चूंकि वो डिलेड वर्जन है, शुरू में उसके 10 जीरोज ही होंगे, तो ये मैंने 1 प्लस डी इंटू 41 प्लस डी। तो मैचिंग पॉइंट्स को मैच करने के लिए, क्योंकि y में मेरे पास 40 पॉइंट्स हैं, y डी में मेरे पास 40 प्लस 10 50 पॉइंट्स हैं, तो मैं इसके और इसमें से 40 पॉइंट्स ही आपस के जो सामने सामने आ रहे हैं, मैंने उनको माइनस किया और डिफरेंट सिग्नल को प्लॉट कर दिया है। इसको रन करके देखते हो, तो ये मेरे पास आपके पास x ऑफ डी का रिस्पॉन्स था, ये y ऑफ डी का रिस्पॉन्स, y का रिस्पॉन्स आ गया, ये y ऑफ डी का रिस्पॉन्स आ गया। इनको जब मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे पास डिफरेंस इनका जीरो ही आ रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम मेरे पास टाइम इनवेरिएंट है। तो जो सिस्टम है हमारे पास, ये जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई थी ऊपर, अगर मैं ऊपर जाऊं, ये वाला सिस्टम, तो ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ये एक सिस्टम एलटीआई सिस्टम है, क्योंकि ये लीनियर भी है और ये टाइम इनवेरिएंट भी है। तो ये मेरे पास एक एलटीआई सिस्टम है, जो हम लोगों ने मैटलैब में देखा हम कैसे एक एलटीआई सिस्टम को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है इम्पल्स रिस्पॉन्स का। किसी भी सिस्टम का जिस तरह हमें सिस्टम गिवन है, उस सिस्टम का हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो IMPZ की कमांड है, नम डी नम और n, कितने पॉइंट्स का हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए, 100 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का, जितने पॉइंट्स का आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए आप यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं n के अंदर। नम डी नम सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, और IMPZ वो कमांड है जिससे आप इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हो। इसके बाद इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को मैंने स्टेम किया हुआ है, इसको रन करके देखें तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट 100 पॉइंट्स का इम्पल्स रिस्पॉन्स आपके पास प्लॉट हो रहा है। टाइम इनवेरिएंट, एक मिनट, हाँ जी, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स की एक्सरसाइज आ गई है। इसके साथ आपके ये क्वेश्चंस हैं, जिस तरह आप इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट 45 सैंपल्स आपको जनरेट करने हैं और एलटीआई सिस्टम नीचे गिवन है। तो नम डी नम में आपने ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे इसके x के और y के, और यहाँ पे n जो 100 है वहां पे आपने 45 लिख देना है। तो आपके पास ये फर्स्ट 45 सैंपल्स आ जाएंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स के, ठीक है। इजी से क्वेश्चंस है, ये आराम से आप लोग कर लोगे अगर आप वीडियो को गो थ्रू करेंगे। इसके बाद आ जाता है कैस्केडेड रियलाइजेशन।
कैस्केडेड रियलाइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, एक एलटीआई सिस्टम मेरे पास डिफाइंड है y ऑफ n प्लस 1.6 प्लस 2.28 1.323, ये 4 ऑर्डर का है, ठीक है, n माइनस 4 तक हम जा रहे हैं, ये 4th ऑर्डर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। इसी तरह x ऑफ n माइनस 4 तक जा रहे हैं। तो इसको मैं दो सिस्टम में ब्रेक कर लेता हूँ, दो 2 ऑर्डर यानी 2 ऑर्डर के सिस्टम में, मींस n माइनस 2 तक एक ये सिस्टम आ जाए और इसी तरह n माइनस 2 ये आ जाए। तो इसकी अगर कैस्केडेड रियलाइजेशन जो हमें गिवन है और जो हमने देखना है कि वाकई इसकी कैस्केडेड रियलाइजेशन है या नहीं है, वो ये है, ठीक है, y1 ऑफ n प्लस 0.9 y1 प्लस 0.8 yn माइनस 2 इज इक्वल टू 0.3 अप टू 0.4 x ऑफ n माइनस 2। इसी तरह स्टेज 2 गिवन है, तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है ये n माइनस 2 तक की ही है। मैं एक इनपुट सिग्नल को स्टेज 1 से गुजारूंगा, ठीक है, और स्टेज 1 की जो आउटपुट होगी वो स्टेज 2 की इनपुट बनेगी। स्टेज 2 की जो आउटपुट आएगी और जो इसकी आउटपुट आएगी, अगर वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आपके पास जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है ये इसकी कैस्केडेड फॉर्म है। अगर वो इक्वल नहीं आते तो ये कैस्केडेड फॉर्म जो ऊपर निकली हुई है ये गलत है। इसको मैटलैब में देखते हैं, ठीक है, मैंने ये आ रहे हैं कैस्केडेड, मैंने एक सिग्नल जनरेट कर लिया है x, ठीक है, आप कोई भी किसी भी फॉर्म में x को जनरेट कर सकते हो, मैंने एक रैंडम ये x जनरेट किया है, n 0 to 40 ले लिया नम और डी नम में, ये मेरे पास 4th ऑर्डर सिस्टम है। कैसे? y n माइनस 1 n माइनस 2 y ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और ये n माइनस 4 के कोफिशिएंट आ गए। सिमिलरली इधर भी नीचे, तो ये 4th ऑर्डर जो मेरे पास सिस्टम था इसकी मैंने आउटपुट कंप्यूट कर लिया है फिल्टर की कमांड यूज करके, x इनपुट दिया नम डी नम को, तो मेरे पास y आ गई है। अब इसी तरह मैं नीचे दो सिस्टम्स मैंने जो दिए हुए थे स्टेज 1 स्टेज 2, मैंने स्टेज 1 का बना लिया नम 1 डी नम 1 के साथ, नम 2 डी नम 2 के साथ है। अब मैंने x को उसी जो इनपुट सिग्नल है उसको मैंने नम 1 से डी नम 1 से गुजारा, y1 से गुजारा यानी स्टेज 1 से गुजारा, और y2 में मैंने स्टेज 1 से जो मुझे आउटपुट मिल रही थी वो मैंने y2 को इनपुट दे दिया है। उसके बाद जो y2 आ रहा है और जो y आ रहा है उसका मैं डिफरेंस निकालूंगा। अगर वो डिफरेंस मेरे पास 0 है तो मेरे पास सिग्नल बराबर है, यानी कैस्केडेड है, और अगर वो नॉन जीरो रिस्पॉन्स आता है तो वो कैस्केडेड नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, आपको ये नजर आ रहा है, तो डिफरेंस सिग्नल मेरे पास है, तो मैंने मेरे ख्याल में कहीं कोफिशिएंट्स 0.3 माइनस 0.2 प्लस 0.4, क्योंकि ये कैस्केडेड है, कहीं ऊपर 0.3 माइनस 0.2 0.4 1.9 0.8 1.9 0.8 0.2 माइनस 0.5 0.3 0.2 माइनस 0.5 0.7 है, ये 0.3 है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ से इसको 0.3 कर दिया, 1.7 0.85 1.7 0.85। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये मेरे पास डिफरेंस सिग्नल 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये और ये एक दूसरे के कैस्केडेड हैं, ये आउटपुट ऑफ 4th ऑर्डर था और ये आउटपुट ऑफ कैस्केडेड रियलाइजेशन है, ये y2 की है और ये y की है, ठीक है। और ये मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है वो कैस्केडेड फॉर्म है। अगर मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में से किसी एक का कोई कोफिशिएंट चेंज कर देता हूं तो मैं देखूंगा कि अब ये कैस्केडेड फॉर्म इसकी नहीं रहेगी। तो अब मेरे पास जो आएगा वो नॉन जीरो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये नॉन जीरो रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कैस्केडेड रियलाइजेशन इसकी नहीं है। कैस्केडेड रियलाइजेशन प्रूफ कैसे होती है ये हमने देखा है। इसके साथ आपके पास अगेन 5 क्वेश्चंस हैं, कैसे करने हैं ये आप लोगों ने देखना है। इसके बाद कन्वोल्यूशन आ रहा है कि हमें एक इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, ठीक है, एक इनपुट सिस्टम गिवन है। हमने जिस इसकी इम्पल्स रिस्पॉन्स के जो गिवन है उसकी हमने सिस्टम की आउटपुट निकालनी है
इस सिग्नल के साथ, तो मुझे कन्वोल्यूशन करनी है। कन्वोल्यूशन के लिए कौन सी ONV की कमांड है, ठीक है, 14 पॉइंट के ऊपर मैं इसको प्लॉट कर लूंगा, तो सिंपल जो कन्वोल्यूशन आ जाएगी मेरे पास वो आ रही है, ठीक है। और इसी तरह उस कन्वोल्यूशन को अगर मैं प्रूव करूंगा, मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 है और h है और x1, उसको x को मैं भेज रहा हूँ तो भी मेरे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा, जो ये प्रूव करता है कि कन्वोल्यूशन और फिल्टर अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो इनका रिस्पॉन्स दोनों के सेम ही आते हैं, ठीक है, दोनों के रिस्पॉन्स आपको सेम ही आ रहे हैं। अगर डिनम में 1 से ज्यादा कुछ है, ठीक है, एक नहीं है, y ऑफ n-2 n-3 है, तो फिर आप वो कन्वोल्यूशन जो होती है वो सिंगल वेरिएबल कन्वोल्यूशन नहीं होती, उसके लिए 2D या 3D की कन्वोल्यूशन आती है। अगर आप उसको कॉन्व के साथ करोगे तो वो आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बल्कि कन्वोल्यूशन में आपको वो सीधा सीधा एरर दे देगा कि h में मेरे पास अगर नम डी नम की फॉर्म में मैं लिखूं तो डिवाइडेड बाय, अब मैं लिख दूं 0 1 0 0 0 1, तो अब अगर देखें तो मेरे पास कन्वोल्यूशन का एरर आ जाएगा, डायमेंशन मैट्रिक्स मस्ट आएगी। तो कन्वोल्यूशन जो है ये आप लोग तब भी देख सकते हो जब आपके पास 1 हो, डिनोमिनेटर में 1 हो। अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, इम्पल्स रिस्पॉन्स में 1 से ज्यादा आ रही हैं वैल्यूज, तो आप कन्वोल्यूशन को नहीं, आप 2D कन्वोल्यूशन यूज करते हैं, हम लोग उसके बाद फिर फिल्टर की कमांड यूज कर लेते हैं। स्टेबिलिटी टेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एन LTI सिस्टम, अगर मेरे पास किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स नॉन जीरो है, ठीक है, तो हम लोग उसको सिस्टम को स्टेबल कहते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स का सम यानी समेशन HK ऑफ n इज लेस देन इंफिनिटी, तो आप उसको सिस्टम को स्टेबल कहते हो, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए हम पहले एक सिस्टम मेरे पास आ गया नम डी नम, मैंने उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लिया h में। अब इस h का एब्सोल्यूट सम निकालना है, तो उसका जो तरीका है वो ये है कि मैंने एक सम का वेरिएबल ले लिया जिसको इक्वल टू 0 ले लिया, k इज इक्वल टू 1 to n+1 तक गया हूं, क्योंकि 0 से 200 है तो 1 से 201 तक आपके पास 200 पॉइंट्स बनेंगे, 201 पॉइंट्स बनेंगे। तो मैं 1 तक जा रहा हूं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, सम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ k, तो ये दोनों सम अप होती रहेंगी। अगर आपके पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इतनी छोटी आ जाती है कि वो 10⁻⁶ से भी कम आ रही है, तो वो लूप को वहीं ब्रेक कर दे, मींस कि बहुत छोटी वैल्यू 0 + 0 + 0 + 0 करते रहोगे तो 0 ही आएगा। अगर ये कंडीशन ना भी रन करें तो भी आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यूज वही आएंगी। ये कंडीशन हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें 201 पॉइंट्स तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 50-60 तक आपके पास आ जाती है, k की वैल्यू आ रही है, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्लॉट किया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवा दिया यूजिंग डिस्प्ले वैल्यू। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है, 1.67 एक्सपोनेंट -5, इसका एब्सोल्यूट सम है, नॉन जीरो है, तो मींस कि ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू स्टेबल है। 1.67 हालांकि बहुत छोटी वैल्यू है, मगर फिर भी नॉन जीरो, हम 10⁻⁶ को नॉन जीरो कह रहे हैं, तो इस वजह से आ रही है। लास्ट में हम फिल्टरिंग की कमांड पे देखेंगे कि फिल्टरिंग की कमांड को पे हम फ्रीक्वेंसी स्वीप के पे हम फिल्टरिंग की कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने दो सिग्नल ले लिए हैं, 2 cos 10 × n डिवाइडेड बाय 256 और 100 × n डिवाइडेड बाय 256। अब ये x1 और x2 में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, क्योंकि 10 × n डिवाइडेड बाय 256 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ठीक है। 256 आएंगे, अगर मैं इसको
रन करके आपको दिखाऊं तो आप ये देखें कि x1 और x2 में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। अब इन मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके मैंने एक x जनरेट कर लिया, ठीक है। मैंने num1 एक ले लिया सिस्टम, ठीक है। इसी तरह num2 और dnum2 दूसरा सिस्टम ले लिया। एक इस सिस्टम में से मैंने y1 गुजारा है, इस सिस्टम में से मैंने y2 को गुजारा है, और इन दोनों को मैंने सिस्टम को मैंने प्लॉट कर दिया। तो फिल्टरिंग का कंसेप्ट हमें यही बताएगा कि जब इसने एक सिस्टम अगर वो अगर यहाँ पे x इसी को मैं कॉपी और पेस्ट करूं, ठीक है, और इनकी अलग अलग फिगर्स बना लेते हैं। फिगर की कमांड सबप्लॉट 211 n y1 की जगह मैं पहले x1 को करता हूं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x2 आ जाएगा, एक्सिस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं फिगर की कमांड यूज करता हूँ, ठीक है, और प्लॉट n कॉमा जो x कंबाइंड आ रहा था, जो हमने x क्योंकि हमने कंबाइंड सिग्नल को इनपुट पे भेजा है। फिर मैं फिगर में आउटपुट देख रहा हूँ कि मेरे पास अब उसके बाद y1 में मेरे पास सिस्टम फर्स्ट सिस्टम की आउटपुट है, y2 मेरे पास दूसरे सिस्टम की आउटपुट है। अब इसको रन करते हैं तो ये मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये मेरे पास एक x1 है, ये मेरे पास x2 है। तकरीबन 250 ये पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं। 300 वैल्यूज को हम देख रहे हैं। एक लो फ्रीक्वेंसी है और एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ठीक है। ये मेरे पास इसका कंबाइंड रिजल्ट आ रहा है। अब इस पे मैं आऊं, जो फर्स्ट सिस्टम है उसने मुझे हाई फ्रीक्वेंसी दे दी है, जो आउटपुट ऑफ सेकंड सिस्टम है उसने मुझे लो फ्रीक्वेंसी दे दी है। मींस के अगर हम मैं इसको देखूं और मैं इसको देखूं, ठीक है, तो जो फर्स्ट सिस्टम था उसने मुझे ये हाई फ्रीक्वेंसी निकाल दिया कि हाई फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है मगर इतनी स्मूथ नहीं है। जो सेकंड बल्कि ये हाई नहीं है, ये लो फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी बहुत कंप्रेस होती, लो फ्रीक्वेंसी आ रही है मगर वो इतनी स्मूथ नहीं है। जबकि सेकंड सिस्टम की आप आउटपुट देखें तो वो स्मूथ है। हालांकि एक ही सिग्नल है जो हमने दोनों सिस्टम से गुजारा है, दोनों के रिस्पॉन्सेज अलग अलग जनरेट होते हैं। तो फिल्टर यही कह रहा है कि फिल्टर आपके पास सिस्टम्स के अंदर से सिग्नल्स को गुजारने के बाद एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो आउटपुट आप प्लॉट कर रहे हो। इसके साथ आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। आपने कैसे स्वेप्ट सिग्नल को लेंथ 301 और मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0.5 है, विच फिल्टर हैज बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सप्रेशन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी। ये आपने खुद करने हैं क्वेश्चंस। तो आज की लैब यहीं तक है। इससे आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।